Good morning, guys. Hope you all are healthy, happy, and fine. I want to show something special that is very, very nearer to my vision. And 4 years earlier, when I was in third semester, I got some access of some specific institution that is Indian Pharmacy Graduate Associations. I was more keen and more curious कि यार लोग दुकान बना करके कितना बढ़िया काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन बना कर कितना बढ़िया काम कर रहे हैं. And I got direct access through certifications, webinar and all. I wanna show you that it happens in 2020. Means 4.5 साल पहले ही मैंने ये काम किया था और मेरे को ये मतलब I'll show you the exact SOP and timeline. See, Indian Pharmacy Graduate Association. It was a webinar where we are discussing the building career in pharmaceutical manufacturing, and it was really nice. And people had appreciate, and we'll tell that we'll try to create SOP and try to product line and different product market fit portfolio. I was involved and participate, and I don't know what are the insight, but seminar was too good. People had appreciate my vision and they clapped. और मेरे को ये लगता है यार 3-4 साल पहले मतलब हर आदमी का एक वो क्या बोलते हैं यार SOP ऑफ चेकलिस्ट होता है. मतलब हर एक आदमी का एक अलग अलग लिस्ट होता होगा. जैसा मेरे को जितना समझ है एज पर माई ओन कि 4 साल पहले मैंने जो काम किया था आज भी मतलब थिंग्स टू बी लाइक दैट. आई डोंट नो, बट मेरे को ये लगता है कि हर एक आदमी का ना एक मतलब ईयरली प्लानर चेक बॉक्स होता है कि यार इस साल मेरे को ऐसे लोगों से मिलना है, ये स्किल सीखना है, नेटवर्किंग के लिए यहाँ जाना है. तो मतलब कोविड का टाइम था, वी आर नेटवर्किंग टू द पीपल ऑफ लोकल एंड ऑल. एज पर माई नेटवर्क जहां तक मेरे से हो सका मैंने किया. ठीक है. लास्ट डे अर्लियर आई वॉज इन चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. And I was just scrolling all the certificates of different MBA schools, pharmaceutical manufacturing firm, investing community, and VC community. I just got that we are planning to build manufacturing setup, manufacturing lineup, SOP of manufacturing pharmaceuticals. I just got it stuck that email that sent by IPGA, and in Changi we made NUS, National University of Singapore, and NTU. They are the Asia's top 8 global university. और वहाँ मैंने फार्मास्यूटिकल्स रेगुलेटरी कंप्लायंस अथॉरिटी के जो टीचर है, एसोसिएट प्रोफेसर, उन लोगों से मिला. दे आर हाईली फोकस्ड अबाउट मैन्युफैक्चरिंग SOP एंड मैन्युफैक्चरिंग SOP बेस्ड ऑन R&D सस्टेनेबिलिटी. एंड आई वाज मोर क्यूरियस कि यार हमारे यहाँ ये चीज क्यों नहीं हो रहा है, हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं पढ़ा रहे. भाई यू शुड ट्राई एंड टेक द रिस्क. एंड कॉलेज विल एक्ट एज ए VC फर्म और इंक्यूबेशन फर्म. हमारे पास जो भी एक्सेसिबल नेटवर्क है हम बच्चों को देते हैं एंड बच्चों से हम SOP और प्रोडक्ट लाइनअप बनवाते हैं. दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे. After connecting and communicating 1.5 hours, I share my that what we are doing in India, especially in Bengaluru and my native site, and we are build the SOP line of digital health tech, cloud health tech, and SMM. They all are they are more curious to know, and one of them had tell that it's better you can join and be our partner. I said we'll try and we'll think about that, and then we will answer to you. And among one of the investors said we are ready to be the partner and be the mentor. And I don't know how they will treat their talent. There's a culture of treating good people, or there's a culture of treating opportunity. I love the way that they had tried to connect me and they had approached. It was really a one more thing I had realized that the government, people, and the ecosystem that are more ready to welcome, or they are eagerly welcome the opportunity, talent, and human resources, very open-hearted. And especially I was more the thing that had appreciated and that was very nearer to me, that government of Singapore is investing 5.6 or 6.5%, almost 7% of the total budget in education that is based on R&D and sustainable manufacturing. And the layer of ROI that they are investing in human resource, that is incredible. And one of the best thing that I realized, यार मतलब छोटा सा कंट्री है, वो इतना इन्वेस्ट कर रही है R&D पे, टेक्नोलॉजी पे और एजुकेशन पे. हम अपने यहाँ कभी ये चीज अप्लाई करेंगे, इम्प्लाई करेंगे. I was also shared my all the insights that academically what I had done, beyond the academics, what we had built, and overall what our SOP and what we want to build, and our vision for sustainable industrial manufacturing in pharmaceuticals, affordable medicine manufacturing, and make it the affordable for each and everyone in India or pan India. And side by side we are building the technology SOP. So I don't think that it will
मीन्स मतलब इसको क्या बोलते हैं, बटन दबाया और जादू हो गया, टाइम लगता है। एंड पीपल्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ resources allocation, that's matter more, and the way we are implying, I don't know, but the major focus to building product lineup go to break. To be honest, what I got the access of different industrial data, consumption data, and different institution, nah, hardly I got the insights and overall result that sustainable manufacturing is the future of global consumption, not in even India, China, USA, and African country, but as a larger platform, a larger phases of proof of concept. Sustainable manufacturing is the future of global consumption, and hardly and fastly we have to invest on API building, R&D, and beyond that we have to create a SOP that what are the best possible sustainable consumption layer and what are the best things that we can create as a product and service in our ecosystem. That should be mandatory through education. Sustainable manufacturing is the future of global consumption. और जो भी लोग API, R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन में है, मोस्ट वेलकम। मैं चाहूँगा कि मतलब एक पूल ऑफ टैलेंट और ए ग्रुप ऑफ यूनिक टैलेंट दैट वर्किंग इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, PV, PA, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल कंप्लाइंस, मतलब एक पूल ऑफ डिजाइन टैलेंट ये तैयार किया जाए और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। लेटर एंड फास्टर, इट इज़ द अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ इंडिया। जितना जल्दी हो सके लोग इस बात को समझे। सर्विस बेस्ड मार्केट 1000 दिन पे या 1200 दिन पे सैचुरेट कर रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वी हैव टू क्रिएट ए सोसाइटी और कंजम्पशन ऑफ पूल लेवल दैट कि यार मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन शुड बी मोर एम्पावर्ड। मेरे को ऐसा लगता है कि R&D बेस्ड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड की पार्ट फॉर एक्वायरिंग प्रॉस्पेरिटी और गेटिंग मोर प्रॉस्पर or creating more wealth or creating more IPR. This is the real fact that American monopoly or American tech product and pharma product are creating SOP. European pharma product have their specific IPR और वो लोग R&D based मैन्युफैक्चरिंग पे ही काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है इट्स टाइम टू अडॉप्ट, और मतलब इट्स रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि 0.125% है, 0.012% ऑफ जो R&D बजट है, एजुकेशन बजट है, थोड़ा इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर ये चीज़ नहीं हुआ ना तो मतलब कंट्री लाइक इंडिया वेयर 150 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे जो लोग एजुकेट हो रहे हैं वो अपने आप को शिक्षा लेना इट्स जस्ट लाइक ए ब्लेसिंग्स। तो मतलब R&D को एम्पावर करना इट्स मोर। एंड पर्सनली मेरे को यही लगता है कि मतलब अगर आप 0.1% R&D में डाल रहे हैं, एजुकेशन में डाल रहे हैं टोटल GDP का, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। मतलब क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है यार, वो नहीं होना चाहिए यार। मैं तो चाहता हूँ यार मतलब सब कुछ को ठीक बाद में किया जाए, एजुकेशन एंड R&D को पहले ठीक किया जाए। ये ठीक कर दोगे ना, लोगों का सोचने का नजरिया, लोगों को IPR पेटेंट डालने का नजरिया बदलेगा ना, लोग पैसा कमाना शुरू कर देंगे, लोगों का बुद्धि बदल जाएगा। और इट्स ए होल एंड सोल रिक्वेस्ट। मैं यही चाहूंगा कि यार मैं सिंगापुर देखा हूँ, पिछले साल मैं सैन फ्रांसिस्को गया था, कैलिफोर्निया गया था, पाओलो अल्टो। US गवर्नमेंट भी 5.5% R&D पे डालती है, और इस साल जो फैंग है $100 बिलियन से ज्यादा वो लोग R&D पे डाल रहे हैं, टैलेंट एक्विजिशन पे डाल रहे हैं। कल परसों सिंगापुर जाके देख करके आया हूँ। तो अगर आज आपने R&D पे और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पे GDP का 5 to 7% खर्चा नहीं किया ना, तो जो भी मतलब एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, जो 70% मिडिल क्लास जनता है, वो लोग पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा तो लेंगे, लेकिन मार्क माय वर्ड, वो अपने बच्चों को इंडिया में नहीं रहने देंगे। और इंडिया में जो लोग नहीं रहेंगे, हो सकता है माई वर्ड्स आर वेरी बैड एंड इट साउंड बैड, बट जो बंदा मतलब जो पेरेंट अपने बच्चों को पेट काट करके पढ़ा है ना, वो अपने बच्चे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोर्स करेंगे कि भाई तू जा पैसे कमा करके ला, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखा है। एंड अगर आप एजुकेशन को इंपावर नहीं कर रहे हो ना, तो इसका डायरेक्ट सेटबैक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और सोसाइटी में क्या बोलते हैं, बैड एक्टिविटी, थ्रेफ्ट, चोरी। ये दीज आर द मतलब। एंड ग्लोबली अगर आप देखते हैं ना, तो इंडिया इज सेकंड वर्ल्ड कंट्री, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। और यहाँ पे एजुकेशन, गरीबी, बेरोजगारी और लेस एजुकेशन और इम्पैक्टफुल एजुकेशन और R&D के नहीं होने की वजह से जो है ना, यहाँ पे मतलब फोर्स्ड माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग मिलीनियर्स, और दे हैव कैपेसिटी टू बिल्ड इंटायर ग्रेट वेल्थ, वो लोग इंडिया छोड़ करके जा चुके हैं, दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, सिंगापुर शिफ्ट हो चुके हैं। और मैं ऐसे HNI से मिला हूँ, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, दे आर डूइंग वेरी गुड, दे हैड अप्लाई फॉर देयर ग्रीन वीजा, H1B1, और बहुत सारे लोग USA जा चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि यार मतलब कब तक ये वाला जो है ना, मतलब देश छोड़ के फोर्स माइग्रेशन को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है, आई डोंट नो। बट जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे यहाँ बैठ के तुम्हारे बच्चे अगर
तुम्हारे शहर में या तुम्हारे गांव में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो आईपीआर डाल रहे हैं, पेटेंट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ वो एक फर्म डाल रहे हैं और वो पूरी दुनिया से पैसा कमा करके इंडिया में ला रहे हैं। दैट इज द होल एंड सोल पर्पस जो मेरे को लगता है कि आई एम सेइंग दैट ग्लोबल फर्स्ट कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री एंड अमेरिकन कंट्री, अमेरिका इज बीइंग बेनिफिटेड बाय इंडियन टैलेंट। आई एम 100% श्योर एवरीबडी नो द सीईओ ऑफ गूगल, परप्लेक्सिटी, फैंग और सब यहाँ से मतलब बीटेक किया, एमटेक किया और फिर वहां जाके एमबीए करके जो है ना सेम कंपनी के सीईओ बन रहे। भाई तुम्हारे मतलब हार्वर्ड में क्या ऐसा चमकीला चीज है या कौन सा मतलब ये है, क्या बोलते हैं, जादू की ड्रिंक या जादू का वो एसओपी ऑफ सॉर्ट्स के मास्टर्स यहाँ से करते हैं और एमबीए करने के बाद डायरेक्ट लोग सीईओ बन रहे हैं। सीरियस मार्क माय वर्ड, अगर आपको 10, 15, 20 और 50 और 100 साल के लिए अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा जैसे एक एंटरप्रेन्योर सोचता है। एंड अमेरिका इज द ग्लोबल वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरियल कंट्री। आप I don't know what is the best SOP that how they are hire the talent, but just think about that. हमारे यहाँ ये चीज नहीं है और इंडियन टैलेंट इज बीइंग बेनिफिटेड एंड एक्स्ट्रा ओवर कंज्यूम, मतलब क्या बोलते हैं, जूस निकाल देना, द एग्जैक्ट वर्ड जूस निकाल देना। इंडियन बच्चे फार्मेसी में, हेल्थ केयर में और एपीआई प्रोडक्ट बिल्डिंग में 85 to 87% जो टैलेंट है ना सब इंडियन है। मैं पिछले साल कैलिफोर्निया गया था, पालो अल्टो लैब, अमेजॉन R&D लैब, माइक्रोसॉफ्ट 365 लैब, मैं जाके देखा हूँ वहाँ पे सारे के सारे जो मेजर टैलेंट है दैट इज इंडियन और सब बीटेक। ऐसा कौन सा जादू का पुड़िया पिलाया जाता है, इंडियन बीटेक, एमटेक और एमबीबीएस और एम्स के डॉक्टर यहाँ पढ़ाई करते हैं, अमेरिका में जाके जो है दे आर गेटिंग ऑल द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस, ऑल द फुल दौलत शोहरत इज्जत, सारे टैलेंटेड लोग वहाँ जाकर के बस रहे। आई वॉज मोर क्यूरियस और मैं मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज को जो है ना इंडिया में ही रहने दिया जाए, बेहतर रहेगा। क्योंकि आज मतलब 30-40 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ से कम लोग हैं अमेरिका में जो ऑलमोस्ट $150 ट्रिलियन इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। और हमारे लोग जाकर के वहाँ काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, फैंग में, 500 फॉर्चून कंपनी में। और ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ जाकर के पढ़ाई किया, भाई यहाँ से पढ़ करके तब जाकर वहाँ काम कर रहे हैं। भाई ऐसा इंस्टीट्यूशन यहाँ भी बनाओ यार, लोगों को हायर करो यार, ठीक है। और मतलब अगर अगले 100 साल में तरक्की करना है ना तो मार्क माय वर्ड, अगर आपको रियल में विश्व गुरु बनना है ना तो अगले 100 साल का बैठ के प्लानिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड, इंफ्रा, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, इस पे पैसा डालना होगा और लोगों को भूलना होगा जात धर्म, तुम्हारा कौन जात है, तुम किस जात से आते हो, तुम्हारा कौन सा धर्म है और तुम किस भगवान में पूजा करते हो। जिसको जो पढ़ना है बैठ के पढ़ाई करो, एक्सेसिबल रिसोर्सेज सबके पास होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट का पेनिट्रेशन सबके पास है, तो मतलब यू ऑल कैन विन, यू ऑल कैन बिल्ड, यू ऑल हैव पोटेंशियल, ठीक है। तो मेरे को ये ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो फंड लोकेशन है वो R&D और एजुकेशन पे थोड़ा ज्यादा कर देगी, ज्यादा नहीं, 0.1% से बढ़ा करके ना 5% तक कर देगी ना तो शायद ये सब बात बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और मेरे को बहुत उम्मीद है यार, मतलब मैं चाहता हूँ कि अगले 2045-47 से पहले इंडिया विल बिकम द मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। हमारे को ना मतलब एक्टिवली सोचना होगा कि मतलब ये एक आदमी है ना या एक बच्चा है ना, दिस इज द रिसोर्सेस और एसेट्स फॉर आवर इकोनॉमी और कंट्री, और हमको उसी तरीके से उसको ग्रूम करना होगा। उसके मन में जो है ना मतलब उसके एकेडमिकली, उसके फाइनेंशियली, उसके हेल्थ वाइज उसको इस तरीके से तैयार करना होगा कि ये एक बच्चा जो है ना सोसाइटी में, कंट्री में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा प्रोडक्टिविटी के रूप में, ठीक है। और हमारे पास जो वो मानसिकता है ना, पढ़ाई कर लो नौकरी मिल जाएगा, भाई इससे थोड़ा दूर उठो यार, तुम सबके अंदर टैलेंट है भाई, कोई ना कोई नौकरी करके जिंदगी गुजार लो, इस टाइप के थोड़ा मानसिकता से ऊपर उठो यार, लाइफ में कुछ बेटर करने का सोचो यार, सीखने का मतलब हर दिन मेरे को लगता है कि 0.1% एफर्ट मारना इज जस्ट लाइक, कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो, ठीक है। और मेरे को लगता है कि ये चीजें बेहतर, इट डे बाय डे इट बिकम बेटर एंड बेटर। और मेरे को बहुत उम्मीद है यार 2047 से पहले कि इंडिया बिकम द मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ ग्लोब एंड वी बिकम द लीडर। बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। वीकेंड आ गया है फिर से, मतलब ये साल का दूसरा सप्ताह गुजरने वाला है, क्या कर रहे हो और तुम्हारे अपडेट्स क्या हैं, राइट इन आवर कमेंट्स एंड वी विल रेडी टू रीड। एंड मेरे को अच्छा लगेगा अगर तुम अपने इनसाइट शेयर करोगे कि तुम अपने लिए 0.1% एफर्ट मार रहे हो कि नहीं, क्या तुम पर डे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, क्या तुम प्रॉपर तरीके से लर्निंग पे फोकस कर रहे हो कि नहीं, क्या तुम अपने गोल के कितने करीब जा रहे हो। तो मेरे को मतलब आई विल बी मोर हैप्पी। और मैं चाहता हूँ यार मतलब कि हमारा एक देश जो है ना हेल्दी, हैप्पी एंड समृद्ध मैन्युफैक्चरिंग पावर इकोनॉमी बने। और उसके लिए हम सबको ना फंडामेंटल लेवल से पढ़ाई करना होगा, सीखना होगा बैठ करके, और हारने से नहीं घबराने का मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड है ना, वो डेवलप करना पड़ेगा। दिस इज माय POV एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं ऐसे ही सोचता हूँ और मेरे को लगता है कि ये चीजें जो है ना बेहतर से बेहतरीन हो सकता है हमारे लिए।